A very warm welcome to all of you to Self Selection Board of One Step Towards Uniform। मेरा नाम है शुभम वाशने और आज हम पहले शुरुआत में बात करने जा रहे हैं कैप्टन रघुरामन की। इन्होंने 11 साल इंडियन आर्म फोर्स में सर्व किया। 11 साल उनको दोबारा बुलाया गया सरकार के द्वारा और कहा गया कि नेशनल इंटेलिजेंस ग्रेड बनाओ 26/11 के बाद। इसका काम ये था कि आपका काम है डाटा कलेक्ट करना, जैसे यूएस में एनसीटीसी करती है। ये डाटा कलेक्ट करेगी डिफरेंट लैंग्वेजेस में से और उसको एसेस करेगी जिससे आने वाले टेररिस्ट अटैक रोक दिए जाए। इसके बाद उन्होंने पंजाब में जब खालिस्तान मूवमेंट हो रहा था तो वहां पर टेररिस्ट से भी उन्होंने लड़ाई करी। उसके बाद जो हमारी फेवरेट पोस्टिंग है सियाचिन, वहां पर जाके इन्होंने पोस्टिंग को भी संभाला और पाकिस्तानी ट्रूप्स को फेस भी किया। बट आज की तारीख में कॉर्पोरेट वर्ल्ड में काम कर रहे हैं और एक बेहतरीन स्पीकर है। और इनकी एक स्पीच में से मैं आपको एक पार्ट दिखाना चाहूंगा और उसके बाद मैं आना चाहूंगा शुभम सिन्हा के पास, जिन्होंने 2 बार रिकमेंडेशन पाई है फ्रॉम एसीटेक 54 एंड सीडीएस 2019। We were posted in Punjab those days, and in Punjab in 1987, 88, things were not very good. Some of you might recollect from your parents or people who might have told you. And those days, the orders for any troop movement used to be that whenever a jeep or a jonga is moving, the driver is driving the jeep, and the officer sits on the left-hand side seat, the co-driver's seat, and the officer is always supposed to carry an AK-47 on his lap, or an assault rifle or a carbine in his lap. And we used to be in Sangrur, so we had to keep going to Patiala, back, Ambala, back, and these journeys were fairly uncomfortable, long distances in those jeeps, and this AK-47 is a very cumbersome weapon to keep in your lap all the while. So I remember one day when we were going from Sangrur to Patiala, I took the AK-47 and I told my JCO in the back, कि साहब इसको पीछे रख लो, keep it behind. And the JCO didn't move. He didn't take the weapon from my hand. He told me, साहब, order है कि ये आपने अपने पास रखना है. The orders are for you to keep the weapon with you all the time. So I asked him, I said, साहब इसकी जरूरत कब पड़ती है? We hardly use it. We never use it. And then the JCO taught me a life lesson that I want to share with you. I've always carried that lesson with me in my life. He said, साहब अगर इस्तेमाल ना करना पड़े तो 2 हफ्ते, 3 हफ्ते, 1 महीने, 2 महीने, 6 महीने. If you don't need to use it, you may not need to use it for a few weeks, a few months, maybe for 6 months. But the day you need to use it, at that point the weapon has to be with you. At that point you can't say, give me the weapon, I need it now. And that is an extremely important lesson in life. Many times I have a lot of juniors who come into office, they put on their tie just when they're entering. As soon as they go out, they take out their tie, they put it inside, they come in unshaven, they come in unprepared. The day life sends an opportunity to you, you can't be shaving then. The day an important person watches you in an airport, if you're not wearing your tie, he knows that you actually fake it only when you come to him. That is why in life, one of the fundamental lessons the army teaches you is when you wake and get out of your office or get out of your home, from that moment onwards, you are expecting combat. One of the first signs that is written as you move out from your units, the logo over there very clearly says, Aaj Mukabla Hoga. Even if every day has been a peaceful day, today can be that one day when you will have to get into combat, and at that point of time you can't say साहब मेरे को हथियार दो. It will not work. आज मुकाबला होगा, अभी ये शब्द कैप्टन साहब ने कहे। अब मुझे ये नहीं समझ में आ रहा ये जो शब्द है ये शुभम सिन्हा को कैप्टन साहब ने इनके कान में आके कहे या भगवान ने आकर बताया, क्या हुआ मुझे नहीं पता। बट ये जब भी एसबी में जाते थे, चाहे वो कोई सी भी एसबी हो, इनके टोटल 8 अटेम्प्ट में ये हमेशा जाते थे इस एटीट्यूड के साथ कि आज सिलेक्शन होगा। मैंने इनसे जब फोन पे बात की, मैंने शुभम सिन्हा से बात पूछी, मैंने कहा भाई एक बात बताओ, ये जो आज सिलेक्शन होगा ये एटीट्यूड आया कहां से? उन्होंने साफ साफ बोला, यार जो मेरे पुराने अटेम्प्ट होते थे मैं उससे सीख लेता था, उसको दिल पे नहीं लेता था। और क्योंकि मेरे पास ना तो जॉब थी ना तो फाइनेंशियल बैकअप था, तो मैंने सब कुछ उसमें झोंक दिया। पर एक बात की श्योरिटी रखी कि पहले वाले अटेम्प्ट से कुछ सीखा हो और अगले वाले अटेम्प्ट में इस एटीट्यूड के साथ जा रहे हैं कि इस बार सिलेक्शन होगा। अब यहां से जो कहानी आ जाती है इनके इंटरव्यू पर आ जाती है। मैंने इनका इंटरव्यू लिया और इस इंटरव्यू में मैंने इन सारी बातों के बारे में जिक्र किया। अब मैंने इनको डिटेल में इनके साथ शुभम सिन्हा साहब के साथ
मैंने बात की, तो मैंने टैट के बारे में बात की और पीपीडीटी के बारे में बात की। तो मुझे पता लगा कि इनकी सबसे बड़ी वीकनेस ही ये थी। और इसके साथ मैंने इस पिक्चर के बारे में बात की। जब इन्होंने टैट और पीपीडीटी को मास्टर कर लिया, तो मैंने इनसे स्ट्रेट स्ट्रेट एक सवाल पूछा। मैंने कहा, भाई एक बात बताओ, पहले आप किस टाइप की पिक्चर लिखते थे, मुझे एक उसका एग्जांपल दो, और आज की तारीख में आप किस टाइप की पिक्चर लिखते हो जो आपके सिलेक्शन का पार्ट बनी, इस बारे में मुझे बता दो। इसके बाद मैं आया नरेशन जीडी के ऊपर। अगर आप इनके अटेम्प्ट देखो तो 3 स्क्रीन आउट है, और उसके बाद कॉन्फ्रेंस आउट ही हो रहे हैं सिर्फ ये, या रिकमेंड हो रहे हैं। तो इन्होंने स्क्रीन आउट को मास्टर कैसे किया? आप में से कुछ लोगों को पता होगा, जो स्क्रीनिंग होती है ना, वो एक अनसाइंटिफिक टेस्ट होता है, जबकि जो बाकी 3 दिन होते हैं या 4 दिन जो होते हैं, वो साइंटिफिक टेस्ट होते हैं, जिसमें साइकोलॉजी, पर्सनल इंटरव्यू और जीटीओ होता है। तो इन्होंने ये स्क्रीनिंग, जो कि एक नॉन साइंटिफिक टेस्ट है जो करीबन 2000 में आया था, उसको मास्टर कैसे किया, मैंने उस बारे में बात की। उसके बाद मैंने पर्सनल इंटरव्यू में बात की, जिसमें इनसे एक एसआरटी पूछा गया, जिसे टेक्निकल भाषा में कहते हैं फैब्रिकेटेड क्वेश्चन। वो क्या था? वो क्वेश्चन ये था, मान लो शुभम सिन्हा, तुम्हारी बहन को स्कूल में कुछ लड़के हरेस या तंग कर रहे हैं, तो तुम क्या करोगे? अब ये डिफिकल्ट क्वेश्चन इनसे पूछा गया। अब इन्होंने इसे कैसे डील किया, ये वो अपने इंटरव्यू में बताएंगे। इसके बाद मैंने इनसे पूछा टेक्निकल क्वेश्चन के बारे में। जो शुभम सिन्हा है, वो ऐसी टेक 54 से रिकमेंड हुए हैं, और इनकी ब्रांच थी ईसीई। अब मैंने इनसे पूछा कि यार ईसीई में क्वेश्चन किस टाइप के आते हैं, तो उन्होंने ईसीई के तो बताए, बट इसके साथ ये भी बताया कि जो डिफरेंट ब्रांचेस हैं या टीएस एनटी टाइप के जो कैंडिडेट्स हैं जो टीएस के लिए अप्लाई कर रहे हैं, वो कैसे टेक्निकल क्वेश्चन या जो साइंस बेस्ड क्वेश्चन होते हैं उनको कैसे तैयार करें। इस बात पर उन्होंने काफी स्ट्रेस दिया। इसके बाद मैंने एसआरटी वेट पे बात की कि उन्होंने इस पे मास्टरी करी कैसे, और उसके बाद कहानी आई जीटीओ की। जीटीओ के अंदर मैंने डीपली बात की पीजीटी के बारे में, और पीजीटी में उन्होंने बताया स्पून मेथड। इन्होंने एक बात बताई कि अगर एक इंसान स्पून मेथड समझ ले, तो यूट्यूब में जो जीटीओ की वीडियो पड़ी है ना, पीजीटी, एचजीटी, इन सब की, तो वो इन सब पे मास्टर कर सकता है, आराम से समझ सकता है खाली वीडियो देख के जो यूट्यूब पे पड़ी है। बस शर्त यह है उसको स्पून मेथड पता हो। इसके बाद उन्होंने बात की ग्रुप प्लानिंग एक्सरसाइज की। ग्रुप प्लानिंग एक्सरसाइज में डिटेल में बताया कि लिखे कैसे, बोले कैसे, और ग्रुप डिस्कशन में पार्ट कैसे लें। और लास्ट उन्होंने बात की लेक्चरेट में। लेक्चरेट में इन्होंने बताया कि मैंने करंट अफेयर तो किए ही किए, बट मैंने इंडिया रिलेशन विद अदर नेबरिंग कंट्रीज पे भी स्ट्रेस दिया, क्योंकि ये लगातार मेरी सभी एसएसबी में पूछा जा रहा था। अब जो शुभम सिन्हा का इंटरव्यू है वो 7 मार्च को आ रहा है, रात को 8 बजे। अब इसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। अभी मेरी आपसे एक रिक्वेस्ट है कि अगर ऐसा कोई सवाल हो जो मैंने आज तक ना पूछा हो, और आपके पास एक बेहतरीन सवाल है जो हर डिफेंस एस्पिरेंट के काम आ जाए, तो इस वीडियो का जो लिंक है वो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया है, वहां जाकर आप अपना कमेंट डालें, और मैं अगर बेहतरीन सवाल होगा तो मैं जरूर इन शुभम सिन्हा से पूछूंगा, जिससे आप सभी की मदद होगी। अभी वापस मैं कैप्टन रघुरमन के पास आना चाहूंगा, और इनकी एक स्पीच का एक छोटा सा पार्ट दोबारा लेकर आना चाहूंगा। This is a very interesting story. As the title itself says, the leopard that died of shame. And this is in one of the officers' messes of a unit, where you have a leopard which is mounted on the wall, and there is a gold plaque under it which says the leopard that died of shame. Now, when you hear a narrative like that, I mean, how can you pass that trophy without hearing the whole story? So the story goes something like this: that in 71 Ops, this unit was posted towards the eastern sector, where now Bangladesh is a country, and they were involved in that operations. Those days, even now, sometimes in some of the good units, the drinking sessions continue till late night, till 1 o'clock, 2 o'clock. In good units, अगर खाना 3-4 बार गर्म नहीं होता है, तो it's not considered to be a good unit, because CEO will say खाना लगाओ. First couple of times, the mess havildar will not heat up the food because he knows that this boozing session. So we have something in common with the ad world that way. So finally, it's 2 o'clock in the night, and I want you to visualize this. It's a very misty location. Visibility is very low. It's in the middle of a jungle. The officers have left the mess, and now the cook and the masalchi, they are cleaning the utensils, and they are in a sort of a completely dense forest area. And there are a lot of these stray dogs which are fighting for scraps of food. So this masalchi who is cleaning this
patilas and all of that. While he's cleaning it, he's tossing these pieces of food, and the dogs are, fighting on it, and they are biting each other and all of that. And during that time, one of the dogs comes especially close to this masalji and keeps trying to snatch food from that handi. And this masalji gets so irritated as it is सुबह का उठा हुआ, breakfast, lunch, dinner, रात का 1 बज गया. I mean, he's in a very, very irritated mood. So he takes that serving ladle, that long, I don't know what you call it in Hindi, but he takes that ladle and gives one whack to this dog, and there's a yelping sound. And next day in the morning, they find an 8-foot leopard lying dead there. So that leopard was mounted and kept in this mess. कि look at this leopard who died of shame कि मैं कहाँ जंगल का राजा, मेरे को एक मसालची ने मार दिया. Now this unit, their spirit comes from a story which says हमारी पलटन का तो मसालची शेर मार देता है, तुम किस खेत की मूली हो? Who are you messing with? Now that's how you build a narrative to an organization. And this is a very nice story, it's a funny story, but it has a story with a very strong message. अभी कैप्टन साहब ने एक कहानी सुनाई, A Leopard Who Died with a Shame. उन्होंने बताया कि एक मिसालजी ने एक लेपर्ड को मार दिया. उनके कहने का मतलब ये था कि डजंट मैटर मिसालजी हो कि ऑफिसर हो कि कोई और हो, काबिलियत सब में एक जैसी है, ताकत एक बराबर है, सिर्फ सोच का फर्क है. अभी इसी सोच के साथ एक कहानी दूसरी बन जाती है. हमारे हर डिफेंस एस्पिरेंट इंक्लूडिंग मी सबके सब घोड़े जैसे होते हैं, पर हम हरकतें कुछ ना कुछ ऐसी एसएसबी में कर जाते हैं जो गधे जैसी हो जाती है, और इसमें आर्म फोर्स भी कुछ नहीं कर सकता. अभी मैं आपको इनवाइट कर रहा हूं फिर से कि आप इस लिंक के अंदर जो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है, जो कि शुभम सिन्हा के इंटरव्यू का है, उस पर जाओ और कमेंट करो कोई भी सवाल जो आपको लग रहा है वो इंपॉर्टेंट है. अगर मुझे लगा वो क्वेश्चन बहुत बेहतरीन है, बहुत इंपॉर्टेंट है, तो मैं उसे जरूर लूंगा. अगर आप में से किसी को लगता है कि नहीं, जो मेरा क्वेश्चन पुट किया है वो ज्यादा इंपॉर्टेंट है, तो मुझे इंस्टाग्राम पर डीएम करो. मैं इंस्टाग्राम पे अवेलेबल हूं सेल्फ सिलेक्शन बोर्ड के नाम से, और इंस्टाग्राम का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा. मैं लेता हूं आपसे विदा. जय हिंद, टेक केयर, बाय बाय. मैं उनको रोज सोचता हूँ, मैं उनको रोज सोचता हूँ, वो है